देखो आ रहा है सबको समझ में, कोई डाउट हो तो आराम से पूछ लेना। सो किसी भी क्वाड्रेंट में हम साइन के अकॉर्डिंग बता सकते हैं कि वो पॉइंट जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो किसी ने मुझे पॉइंट दिया -5,2, C point is -5,2। So if I look at only the signs, x कैसा है नेगेटिव है और y कैसा है पॉजिटिव है। x नेगेटिव मतलब मैं ओरिजिन से लेफ्ट हैंड साइड पे गया हूँगा, y पॉजिटिव मतलब मैं ऊपर गया हूँगा, तो I will reach in the second quadrant। तो this point will lie in the second quadrant। x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है। और अगर सेकंड क्वाड्रेंट में अपन इसको प्लॉट करेंगे तो कैसे प्लॉट करेंगे, -1, -2, -3, -4, -5। x -5 है और y 2 है, तो 2 कहाँ पे होगा, 2 is this, right? So this point will be known as C। So अगर सपोज करो किसी ने एक और पॉइंट दिया D दिया -3, -4। Now x is negative, y is negative, x is negative, y is negative, then I know it is in the third quadrant। So D का लोकेशन मैं सिर्फ पॉइंट देख के बता सकता हूं कि ये थर्ड क्वाड्रेंट का पॉइंट है। और अगर थर्ड में प्लॉट करना होगा तो x पे 3 जाएंगे, y पे 4 जाएंगे, वो जहां इंटरसेक्ट करेगा दैट पॉइंट वुड बी -3, -4, राइट। तो किसी भी पॉइंट के साइंस को देख के अपन बता सकते हैं कि वो पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है। सो अभी देखो मैं कोई भी पॉइंट ले लेता हूँ, लेट्स से आई टुक अ पॉइंट -3, -2.67, दोनों नेगेटिव है। सो आई नो दिस पॉइंट विल लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट। इफ x is positive, y is negative, right? So x is positive, y is negative, so I know this point will lie in the fourth quadrant। if x is positive, y is positive, I know it will lie in the first quadrant। if x is 0 and y is positive, now see x is 0, so it is neither positive nor negative, right? तो अगर x 0 होगा मतलब आप ओरिजिन पे थे पहले, this was your initial location, x is 0, so you are neither moving towards right, you're neither moving towards left, you're over here। and how much is y? Y is 4.32, so you will move up 4.32, so you will reach over here। so this would be known as 0.4.32, this point। so any point that lies on the y-axis, right, from here we can relate that any point that lies on the y-axis, its x coordinate, x coordinate is always 0, है ना। दोबारा से ऑब्जर्व कर लेते हैं, ये देखो ये y एक्सिस है ना, इसके ऊपर मैं कोई भी पॉइंट ले लूं, राइट, चाहे ऊपर लूं चाहे नीचे लूं। ऊपर लोगे तो आप पॉजिटिव y ले रहे हो, नीचे लोगे तो आप नेगेटिव y ले रहे हो, लेकिन यू आर नॉट मूविंग राइट एंड लेफ्ट। So if you're not moving right and left, your x will always be 0, because if you move towards right, your x will be positive, if you move towards left, your x would be negative। so y axis के ऊपर कोई भी point हो, right, whatever point you take on y axis, your x coordinate will always be equal to 0। so we can always conclude, or we can always write that any point on the y axis will be of the form 0 comma some y। now similarly, let us observe a point on the x-axis, right? so if I move on x-axis, right, if I am at, let's say, this point, now this point is 2 distance away from the origin in the positive direction, and there is no y, I'm not going up, I'm not going down। if I wish to reach over here, I just have to go towards right। if I wish to reach over here, I have to go towards left, no up and down। if I'm not moving up or down, which means my y is always 0, because if I move up, y would be positive। जैसे यहाँ पे 5,1 में y 1 था, तो आप 1 यूनिट ऊपर गए हो, 3,4 में 4 यूनिट्स आप ऊपर गए हो, right? so you are not moving on y। so if any point that lies on the x-axis, the y coordinate will always be 0। so I can write it over there, any point that lies on x-axis, its y coordinate is always 0, right guys?
तो इसको अपन कैसे लिखेंगे, तो कोई भी पॉइंट विच लाइज ऑन द एक्स एक्सिस, उसका फॉर्म कैसा हो जाएगा, इट विल ऑलवेज बी गिवन बाय x, 0. So if I say 2, 0, it is a point that lies on the x-axis at a distance 2 from the origin towards the right-hand side. If I say minus 2, 0, it is 2 units on the left-hand side. So minus 2, 0, right? So these are the basic facts about the points. कौन से quadrant में वो lie करेंगे, क्या signs होता है, कैसे अपन किसी भी point को plot करते हैं. So when somebody says 100, 99, so I will move 100 over here. Then I will go 99 up. Now यहाँ पे एक बेसिक सा डाउट बच्चों के दिमाग में आता है. जैसे अगर मैंने बोला कि मान लो प्लॉट करो, प्लॉट पॉइंट P which is 100, 99. So अभी मैंने क्या बोला, 100, 99 मतलब you have to walk 100. It is positive, right? So you have to walk from origin towards the positive direction. You will reach 100. And then you go up 99 because this is positive, इसलिए will go up. If this would have been negative, we would have gone down. So go up till 99. 99 matlab 1, 2, 3, 4, 99 would be somewhere over here. So you will reach this point which is 100, 99. So हमने walk कैसे किया यहाँ पे? First we walk on the x-axis 100, then we walked on the y-axis. Right? Now, instead of this, I could have done that first I will walk on the y-axis. So first I will cover this 99. So if I go up from origin, I have to go 99. So I'll reach over here. So this distance I have covered, which is 99. Then I have to go 100x. So positive, so I'll go towards right. So walk 100 meters. Sorry, 100 units. So you will reach the same point. So it is not compulsory that first we walk x and then y. You can walk first y and then you can walk then x, right? You will reach at the same location. यहां तक देखो समझ में आया कि नहीं आया? तो किसी भी पॉइंट को 100, 99 को मैं कैसे बोल सकता हूं? अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं ना, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं 100 स्टेप्स तुम्हें राइट में लेने हैं और 99 स्टेप्स तुम्हें ऊपर लेने हैं. राइट. अब यहाँ पे देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है. अब कोई समझदार इंसान हो सकता है, बोलेगा सर आप तो एक ही बार में 100 इधर लेते हो, फिर आप 99 ऊपर लेते हो. मैं ऐसे नहीं लूंगा. मैं कैसे करूंगा, 2 यूनिट इधर जाऊंगा, 2 स्टेप्स, फिर मैं 4 स्टेप ऊपर जाऊंगा, फिर मैं 2 स्टेप इधर जाऊंगा, फिर मैं 1 स्टेप ऊपर जाऊंगा या 2 स्टेप ऊपर जाऊंगा, फिर मैं 50 स्टेप इधर जाऊंगा, फिर मैं कुछ 10 स्टेप इधर जाऊंगा, फिर मैं कुछ स्टेप इधर जाऊंगा और फिर मैं कुछ स्टेप इधर जाऊंगा. सो अगर इसमें भी लॉजिकली सोच के देखो, अगर आपने राइट वाले स्टेप्स का सम 100 है और वर्टिकल स्टेप्स का सम 99 है, तो यू विल एंड अप एट द सेम लोकेशन. इट्स अ स्टेप, राइट? आप स्ट्रेट जाके जाओ, आप ऐसे टुकड़ी टुकड़ी में ब्रेक करके लेके जाओ. If your vertical steps are 99 and your horizontal are 100, no matter what path you take, you will always reach at that particular point, which is given by P. But normally कैसा होता है ना, अपन ये ऐसे पाथ नहीं बनाते, because why to complicate things when we can do it easily. So generally तुम देखोगे मैं भी क्या follow करता हूँ, पहले I move on X, then I move on Y. So it becomes simple. So first move on X. You have to observe whether X is positive or negative. If it's positive, I will move towards the positive direction. If it would have been negative, I would have moved on the negative X. So positive 100, then go up. You reach at your destination. Right? Now, observe another thing over here. Now, when I reach over here 100, if I go up or if I go down, right, all the points will have the x coordinate as 100 only. है ना? So on this line, so it's a line. So if I take any point on this line, x is always 100 and y
keeps on changing. ये जो लाइन है, दिस लाइन इज अ कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स, है ना, बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे मुझे इस लाइन के ऊपर। उस हर एक पॉइंट की खास बात क्या है, कोई सा भी पॉइंट ले लो तुम इस लाइन के ऊपर, आई उस लाइन के ऊपर जो भी पॉइंट तुम लोगे उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट विल ऑलवेज बी 100, y would be something else, right, but x will always be 100। यहां तक देखो सबको समझ में आया कि नहीं आया? आया सर। है ना। चलो फिर एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन कराता हूं सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड दिस। सो द क्वेश्चन सेज a snake is sitting at the origin and facing towards east. Now, take the snake as a point snake, right? So just take a point. Do not draw a snake on the origin. Just take a point on the snake. Point as a snake. So it moved 1 unit and took a right. Then it moved 2 units and took a right turn. Again, it moved 3 units. Good evening, sir. Took a right turn. Good evening. This process is continued. Right? वो snake ऐसे ही चलता रहा फिर. What we need to do is we need to find the location of the snake. पहले एक बार थर्ड टर्न पे निकाल लेते हैं. We need to find the location of the snake after it took the third turn. थर्ड टर्न लेने के बाद में स्नेक कहाँ पहुंच गया? तो स्नेक कहीं ना कहीं पहुंच गया होगा किसी ना किसी पॉइंट पर. उस पॉइंट का लोकेशन मतलब उस पॉइंट के मुझे कोऑर्डिनेट्स बताओ. कोऑर्डिनेट्स मतलब एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट. देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, जो कंसेप्ट अभी अपन ने सीखा ना बस वही कंसेप्ट अपन को लगाना है, दैट्स इट, और आंसर आ जाएगा. सर क्या मैं बता सकता हूँ? अरे इसमें नेकी और पूछ पूछ बिल्कुल बता यार. सर -2 -2 -2 पे कैसे पहुंच जाएगा? लॉजिक क्या लगाया? -2 एक मिनट रुक जा. फर्स्ट टर्म -2 -2, सर -2 -2 आफ्टर थर्ड टर्न. यस यस नहीं, थर्ड टर्न के बाद में आई थिंक वो स्नेक सेकंड क्वाड्रेंट में होना चाहिए. देखो पहले अपन समझते स्नेक चल कैसे रहा है ना. तो ये स्नेक कहाँ बैठा है अपना? स्नेक इज सिटिंग एट द ओरिजिन, राइट. तो स्नेक इज ओवर हियर, दिस इज आवर स्नेक, राइट. तो मैं यहाँ बना देता हूँ 1 2 3 4. सर सॉरी 1 2 रहेगा हो गया. ऐसे होंगे पॉइंट्स, राइट, नंबर लाइन पे. ठीक है, तो अभी अपन अपना स्नेक को
स्नेक कहाँ बैठा था? ओरिजिन पे बैठा था, ईस्ट की तरफ देख रहा था, राइट, फेसिंग टुवर्ड्स ईस्ट. ईस्ट इज दिस साइड, ईस्ट इज दिस. This is north, Jammu and Kashmir, east is Bengal, west is Rajasthan, and south is Tamil Nadu. Okay, so snake was looking towards this direction, positive x. Now, it moved 1 unit. So snake 1 unit चला, यहाँ पहुंच गया होगा. And then he took a right turn. अभी right turn लेगा तो किधर जाएगा, ऊपर की नीचे? सर आंसर है -2 और निकालते निकालते. अभी right turn लेगा तो नीचे जाएगा ना. -. So उसके देखो, अगर snake की जगह अपने आप को imagine करो. If you're walking on this particular path, then this is your right, this is your left. So you took a right turn and you moved 2 units. So 2 units जाऊंगा तो मैं यहाँ पहुंचूंगा. 2 units नीचे आया, 1 unit यहाँ गया. ना अगर मैं नीचे आ रहा हूं तो मेरा राइट किधर होगा? इस तरफ होगा. अभी मैं कितना गया? 3 units. So ये डिस्टेंस कितना होगा? 1 unit ही होगा. 1 2 3, मैं यहाँ पहुंच गया. देन राइट टर्न. अभी राइट टर्न लूंगा तो मैं ऊपर जाऊंगा. कितना यूनिट जाएगा ये? अब 4 unit. तो ये 2 था, तो ये भी 2 होगा, और 2 और ऊपर जाएगा. सर पर 3 टर्न होने चुके क्या? जब वो थर्ड क्वाड्रेंट. आ रहा हूँ है ना. फिर इसके बाद टर्न लेगा तो इधर जाएगा. ऐसा कुछ मूव कर रहा होगा स्नेक, है ना. सो टर्न्स देखते हैं अपन, कहाँ कहाँ पे उसने टर्न लिया. सो दिस टर्न इज द फर्स्ट टर्न, दिस इज द सेकंड टर्न, दिस इज द थर्ड टर्न. तो पहला टर्न लेगा तो यहाँ पहुंच जाएगा. देखो ये चल रहा है. टर्न लिया, यहाँ पहुंच गया. टर्न लिया, यहाँ पहुंच गया. ये टर्न लेगा तो कहाँ पहुंच जाएगा? यहाँ. सो थर्ड टर्न लेने के बाद में तो यहाँ पहुंच जाएगा ना. यहाँ पे वो फोर्थ टर्न लेगा. सो दिस नीड्स टू बी योर आंसर. आफ्टर थर्ड टर्न बोला है. थर्ड टर्न लेने के बाद में कहाँ पहुंच गया होगा? अब इसके कोऑर्डिनेट्स देखो, x कितना है? -2 चल रहा है ना, बिकॉज ये लाइन देखो, इस लाइन पे जो भी पॉइंट होगा उसका x कोऑर्डिनेट -2 ही रहेगा, और इस लाइन के ऊपर जो भी पॉइंट होगा उसका y कोऑर्डिनेट तो 2 ही रहेगा, बिकॉज सेम हाइट पर ही है. किसी भी पॉइंट का मैं हाइट दिखूंगा तो 2 ही आ रहा है. सो आफ्टर थर्ड टर्न इसका लोकेशन क्या हो गया? -2, 2. देखो ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ सबको? सर आफ्टर द थर्ड टर्न, पर हमें क्वेश्चन में बताया थोड़ी है कि मतलब वो ऊपर कितने डिस्टेंस है. अच्छा, नाइस. दिस प्रोसेस इज कंटिन्यूड का मतलब क्या होता है? सर वो चलते ही रहेगा, रुकेगा नहीं. है ना. इस प्रोसेस से वो चलता ही रहेगा. तो सबसे पहले उसने कितना किया? 1 unit. फिर कितना किया? 2. फिर कितना किया? 3. तो इस प्रोसेस को मैं आगे कंटिन्यू कराऊंगा तो क्या होगा? 4. फिर क्या होगा? 5. 1 चलेगा, राइट टर्न लेगा. 2 चलेगा, राइट टर्न लेगा. 3 चलेगा, राइट टर्न लेगा. 4 चलेगा, राइट टर्न लेगा, एंड सो ऑन. आ रही बात समझ में? चलो एक अच्छा एग्जांपल और करते हैं ऐसे. सो अभी वही स्नेक है, ईस्ट की तरफ देख रहा है. फिर आज से अब इसका चलने का तरीका देखो. 1 unit, then took a left turn. 2 unit, took a right turn. 3 unit, then took a left turn, and so on. Find the location after fifth turn. Find the location of the snake after the fifth turn. Fifth turn के बाद में snake कहाँ पहुंच जाए? डायरेक्शन ध्यान से देखना, स्नेक कैसे चल रहा है वो अपन को फिगर आउट करना बहुत जरूरी है. डोंट गेट कंफ्यूज इन राइट एंड लेफ्ट.
was 1 unit and then left turn, right? Then 2 unit. The snake took a right turn. 3 unit. So it was alternate, left, right, and so on. So, right. And I have asked you to figure out the position. Is the answer my? Excuse me, sir. Position after the 5th run. हाँ बोल. मुझसे आंसर मत पूछना, राइट? मैंने रैंडमली ऐसे क्वेश्चन बनाया है तो मुझे भी आंसर निकालना ही पड़ेगा. मैं भी तुम लोगों के साथ ही हूँ. कुछ आंसर आया क्या अपना? सो स्नेक कहाँ पे था अपना? ओरिजिन पे. 1 यूनिट गया पहले, तो 1 यूनिट इधर आया. आंसर 12 निकालते हैं यार, आंसर पे बताता हूँ ना. आंसर मेरे को भी नहीं. सो 1 यूनिट इधर गया, फिर लेफ्ट लेगा. अभी लेफ्ट लेगा तो ऊपर जाएगा, है ना? 2 यूनिट अप, ऊपर जाएगा, फिर राइट टर्न लिया, फिर 3 यूनिट जाएगा, फिर लेफ्ट लेगा तो ऊपर जाएगा 4 यूनिट्स, हेलो राइट सर. लेगा. हाँ हाँ बोल. सर हम वो सिर्फ 1 कर सकते हैं क्या? तो अगर 2 4 6 एक्स एक्सिस देगा और 1 3 5 वाई देगा. बिल्कुल 2 4 6 वाई पे चल रहा है, 1 3 5 7 एक्स पे चल रहा है. अपन ने कहाँ पूछा है? पोजीशन आफ्टर द 5th टर्न. सो दिस इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5th टर्न. 5th टर्न के बाद में यहाँ पहुंच जाए, है ना? आफ्टर द 5th टर्न पूछ रहा हूँ. अगर मैं ऐसा पूछता जस्ट बिफोर टेकिंग द 5th टर्न, तो मैं ये वाला कोऑर्डिनेट निकालता. सो आई नीड टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट फॉर दिस पॉइंट. देखो यहां तक समझ में आया ना सबको? अभी कोऑर्डिनेट अपन कैसे निकालते हैं? याद है अपन ने डिस्कस किया था कि अगर आप पीसेस में भी चलोगे तो भी मेरे को तो सिर्फ ये चेक करना है वर्टिकल कितना चले और हॉरिजॉन्टल कितना चले. तो इस पॉइंट के लिए देखो, तुम हॉरिजॉन्टल 1 यहाँ पे चले हो, यहाँ पे 3 चले हो, यहाँ पे 5 चले हो, तो 1 + 3 + 5, दिस वुड बी हाउ मच? 9. तो x आपका 9 हो गया. आप ऊपर कितना मूव किए? 2 आपने यहाँ मूव किया, 4 फिर आपने फिर मूव किया, 6 फिर आपने फिर मूव किया, तो 6 + 4 + 2 is 12. So the coordinates for this particular point is 9, 12, and यही अपने स्नेक का पोजीशन भी हो जाएगा. अभी देखो आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ना कुछ नहीं करना, सिर्फ मूव करो स्नेक को, राइट? चलो अनदर एग्जांपल ऑन द स्नेक ओनली. ट्राई करो, देखो इसको. सो अभी स्नेक को तुम कैसे भी मूव करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. तो स्नेक ईस्ट की तरफ ही देख रहा है. सो 1 यूनिट, then he took a right turn, then 2 units, it again took a right turn, then 3 units, it took a left turn, 4 units, it took a left turn, 5 units, it took a right turn, 6, it took a right turn, and then उस पैटर्न को फॉलो करता गया. सो पैटर्न क्या हो गया? हर टर्न पे वो अपना डिस्टेंस को 1 यूनिट से इंक्रीज कर रहा है, 1 2 3 4 5 6. और डायरेक्शन कैसा करता है? 2 बार राइट टर्न करता है, 2 बार लेफ्ट टर्न करता है, 2 बार राइट टर्न करता है, 2 बार लेफ्ट टर्न करता है. सो दिस इज हाउ द स्नेक इज मूविंग.
So we need to find out the location of the snake. Location of the snake. इस बार थोड़ा लंबा बड़ा टर्न लेते हैं, राइट? आफ्टर 8th टर्न, चलो 8th टर्न के बाद में वो स्नेक कहाँ पे पहुंच गया होगा, ये हमें ढूंढ के निकालना है। फंडा समझ में आया ना सबको? वो स्नेक घूम कैसे रहा है? बस यहाँ से स्टार्ट करो और उसको मूव कराओ 1 यूनिट 2 यूनिट। डिस्टेंस हर टर्न पे 1 से इंक्रीज करना और डायरेक्शन ध्यान रखना, 2 बार राइट टर्न करेगा, 2 बार लेफ्ट टर्न करेगा, फिर वापस से 2 बार राइट करेगा, 2 बार लेफ्ट करेगा। So 2 right, 2 left, 2 right, 2 left. This is how the snake will move. सर 22 23 है क्या? 22 x एक्सिस 22 y एक्सिस। आंसर तो मैंने कहा ना, आंसर तो मेरे को भी निकालने ही पड़ेंगे यार। I cannot say whether it's correct or incorrect. Let's everybody try and then we'll solve. Yes. अब देख, उसका आंसर तेरा कुछ आया क्या? हाँ सर, मेरे को उसका आंसर ना 22 और 23 है। 22 23। देख 1 इधर गया, फिर राइट टर्न लेगा तो नीचे जाएगा 2, है ना? फिर राइट टर्न लेगा तो 3 इधर जाएगा, फिर लेफ्ट टर्न लेगा तो 4 इधर, राइट? फिर नीचे जा रहा है, लेफ्ट टर्न लेगा तो 5 इधर, फिर राइट टर्न लेगा तो 6 इधर, ऐसा 7 इधर, 8 इधर, 9 इधर, 10 इधर, एंड सो ऑन, है ना? अपन को कौन से टर्न के बाद पूछा था उसने? सर 8th 8th टर्न के बाद, मतलब 9th टर्न। first, this is second, this is third, this is fourth, this is 5, this is 6th, this is 7th, this is my 8th turn. So I have to find the location over here. This is my answer. हाँ सर। अब इसका x और y निकाल। अब देख x क्या होता है, x पे कितना मूव किया। अब देखो मैं इधर गया 1, ये तो y का है, राइट? इससे मेरा x पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो मैं x गया 1 टुवर्ड्स राइट एंड देन आई मूव 3 टुवर्ड्स लेफ्ट। सो लेफ्ट में गया तो माइनस करूंगा ना, है ना? आई विल नॉट ऐड। हाँ हाँ करेक्ट करेक्ट। फिर मैं 5 इधर गया, +5 होएगा। +5, फिर -7, फिर +9, है ना? तो इसका x कोऑर्डिनेट आ जाएगा मेरे पास। ये कितना हो जाएगा? 15 माइनस का 10, 5। अब y निकाल लेते हैं। y में कैसा है, नीचे गया है, सो नीचे जाऊंगा तो नेगेटिव, दिस इज मोर नीचे, मोर नेगेटिव, दिस इज ऑल्सो नीचे नेगेटिव, दिस इज ऑल्सो नीचे नेगेटिव, सर इसका -20 आएगा, नहीं 20 आएगा। दिस इज -20, राइट? तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? द स्नेक रीच द पॉइंट 5, -20। देख सीधा इसका ये आया ना समझ में? हाँ, मैंने वो राइट और लेफ्ट को देखा नहीं, इसके लिए मेरा गड़बड़। अच्छा तूने ऐड कर दिया? नहीं, राइट जाएंगे तो अपन पॉजिटिव में जाएंगे ना, लेफ्ट जाएंगे तो अपन नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं। अपन ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव, नीचे जाएंगे तो नेगेटिव। हाँ 2 बार आया ना, वो नहीं वाला।
है ना? अभी आया ना समझ में, अपन कोऑर्डिनेट एक्सिस पे घूमते किस तरह से, पॉइंट को किस तरह से हाँ। प्लॉट करते हैं। हाँ सर। कूल, राइट।